Good morning, students. We are discussing the chapter number 8, cell structures and function. Yesterday, we have discussed that cell is the smallest unit of the life. Yesterday, I told you that cell is the basic structural and फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स टू से कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, सेल होता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको बेसिकली कौन करता है, सेल करता है या ग्रुप ऑफ सेल करते हैं। ठीक है, तो सेल इज़ द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट वी कैन से। नाउ today we have to discuss that all the organism have different number of cells, different shape of cell and different size of cells. So we are starting with the topic number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like elephant? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different group of cells perform a variety of functions. Organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of organisms. You will be surprised to know that an organism with billions of cells began life as a single, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases as the development proceeds. Look at figure 8.3. A and B. Both organisms are made up of a single cell. The single-celled organisms are called unicellular organisms. Now students, listen to me very carefully that there are two types of organisms depending on the number of cells. There are some organisms which have only one cell, but there are many organisms which have more than one cell. The organisms which have only one cell or single cell are called unicellular organisms. The organisms which have only one cell that are called uni मतलब one और cellular मतलब cell. So the organism which have only one cell that are called unicellular organism, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनके एग्जांपल्स हैं अमीबा एंड पैरामीशियम यूग्लिना एक्सेट्रा. फिर हम बात करते हैं द ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन वन सेल. द ऑर्गेनिज्म विच हैव more than one cell, they are called multicellular organism. Multicellular organism means जिसके पास एक से ज़्यादा सेल होती हैं और उनकी सभी सेल्स मिलके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. बट देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ का स्टार्टिंग हमेशा एक सिंगल सेल से ही होता है. कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम हमारी बात करें तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी की लाइफ की स्टार्टिंग विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसे हम नाम क्या देते हैं, जाइगोट नाम देते हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल read about the zygote in deep. Next, again I am repeating that every multicellular organism's life begin with only single cell that is called zygote or fertilized egg. This zygote multiplies many times. इसमें डिवाइडेशन होता रहता है, सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनती रहती हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं और डेवलपमेंट होता जाता है. तो इस तरह से वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर.
unicellular that have single cell, multicellular which have more than one cell. Now come to the next page. Organisms. A single-celled organism perform all the necessary function the multicellular organism perform. वो ये कहना चाहता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा है, उसमें भी वो सारे फंक्शंस होते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं. यानी कि मान लीजिए जो ह्यूमन बीइंग में जितने भी सारे फंक्शन होते हैं वो सारे अमीबा में भी होते हैं. बट द thing that is important, a single celled organism like amoeba capture digested food, respire, excrete, grows and produces similar functions in multicellular organism are carried out by group of specialized cell performing different tissues in turn form organ. अब इसमें ये कहना चाहता है कि जैसे अमीबा की हम बात करें तो अमीबा भी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बट इन अमीबा देयर इज ओनली वन सेल. तो दिस वन सेल विल परफॉर्म ऑल द फंक्शन. दिस वन सेल ओनली डाइजेस्ट द फूड, दिस वन सेल ओनली रिस्पायर, दिस वन सेल ग्रो, दिस वन सेल ओनली रिप्रोड्यूस, दिस वन सेल विल बी एक्सक्रीट. तो सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल से होंगे. बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. यानी कि जैसे हम किसी भी वर्क को करने के लिए किसी ऑफिस में बात करें, किसी स्कूल में बात करें, किसी भी प्लेस पे बात करें, तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स फॉर ईच द फंक्शन, है ना. जैसे आपकी क्लासेस होती हैं 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, उसमें भी सेक्शन है, ई सेक्शन, यू सेक्शन, आर सेक्शन. तो देयर आर डिफरेंट सेक्शन जो अलग अलग चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करते हैं. तो इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देयर आर ग्रुप ऑफ सेल विच डू डिफरेंट फंक्शन. ये फिक्स होता है कि ये वाली सेल्स यही काम करेंगी, ये वाली सेल यही का वर्क करेंगी. और यहाँ पर एक वर्ड आया है दैट इज टिश्यू. टिश्यू वर्ड आया है यहाँ पर. एक टिश्यू क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ सेल एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं उन्हें बोलते हैं टिश्यू. Tissue is the group of cell which perform similar function. Please write down in your books. Tissue is the group of cell which perform similar function and they have similar structure. I am repeating myself. Tissues are the group of cell which perform similar function and they are similar in structure that are called tissues. Okay students, यहाँ तक clear है. Now come to next topic, shape of cells. Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape appear irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means fall or podia means feet. As you learnt in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. हाँ जी, देखो pseudopodia क्या होता है बेटा. नाउ फर्स्टली सी द फिगर 8.3. इसे अंडरलाइन कर लीजिए. द लाइन्स आई हैव अंडरलाइंड, यू ऑल्सो अंडरलाइन इन योर बुक. नाउ सी द फिगर 8.3a. इन फिगर 8.3a दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. अमीबा की स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ये चीज़ देखो, जो ये इसने आउटर स्ट्रक्चर अपनी बना रखी है, अमीबा पे की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. इट्स शेप कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ये जब मूव करता है तो इसकी शेप वेरी करती रहती है. अब जो स्यूडोपोडिया है वो बेसिकली क्या होता है? स्यूडोपोडिया क्या होता है? मान लीजिए ये अमीबा की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब जब अमीबा को फूड डाइजेस्ट करना है या फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करना है तो अमीबा क्या करता है? व्हाट द अमीबा डू, ये
अपनी बॉडी को इस तरीके से सेटल डाउन कर लेता है, इस तरीके से। यहाँ पर फूड पड़ा है, मान लो फूड का कलर मैं अलग करके देती हूँ, ये ग्रीन कलर वाला फूड है, ठीक है, और ये हमारे अमीबा की बॉडी है। तो अमीबा की बॉडी में ये जो शेप बन गई है जिससे वो फूड को इनटेक कर सकेगा, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया सिर्फ तभी फॉर्म करता है जब अमीबा फूड को इनटेक करता है, और आफ्टर इनटेक द फूड अमीबा की स्ट्रक्चर सेम वैसी की वैसी हो जाती है जैसे कि पहले थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर टॉपिक। हमने बात कर ली कि स्यूडोपोडिया क्या होता है। स्यूडोपोडिया इज़ द प्रोजेक्शन वेरिंग लेंथ, यानी कि जब अमीबा की लेंथ में चेंज होता रहता है, अमीबा की लेंथ वेरी करती है, तो उसमें कुछ प्रोजेक्शन बनते रहते हैं, जो अभी अपने ने आउटर स्ट्रक्चर्स बना के भी देखी थी इस तरीके से, ये वाले, तो इन्हें ही क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पर राइट डाउन भी किया हुआ है, इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटीज मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। यानी कि स्यूडोपोडिया क्या करता है, तब फॉर्म होता है जब अमीबा ने मूव करना होता है या फूड कैप्चर करना होता है। वही बात है कि फूड इनटेक करना होता है। A white blood cell WBC in the human blood is another example of a single cell which can change its shape। हाँ जी, अंडरलाइन कर लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में सिंगल सेल कौन है, तो WBC is the single cell which is present in the human body and it can also change its shape. But WBC, white WBC is a cell, amoeba is a full-flagged organism। यस, दिस इज़ द मेन थिंग कि जो WBC है वो तो एक सिर्फ सेल है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक सेल है, बट जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। WBC इज़ अ सेल बट अमीबा इज़ अ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि अमीबा तो हर वर्क कर रहा है, लेकिन WBC एक सिर्फ सेल है, वो हर वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है, हर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। What shape would you expect in organism with million of cell? Figure 8.4 A, B, C show different cells such as blood, muscle and nerve of human being. The different shape are related to their specific function. Generally cells are round. Generally cell की shape क्या होती है, round, गोल, spherical, elongated, थोड़ी सी लंबी। Some cells are long, pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like nerve cell or neuron. The nerve cell receive and transfer messages, thereby please underline these all the lines firstly in your book. Please students underline these lines, so we will come to the next paragraph. Please underline these all the lines firstly. Thereby helping to control and coordinate the working of different parts of body. Can you guess which part of the cell give it shape? Component of the cell are enclosed in a membrane. These membrane provide the shape of the cell to plant and animal. Cell wall is an Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. It gives the rigidity and shape to the cells. Bacteria also has a cell wall. Underline these lines also so that I will explain. Students, please underline these lines so that I will explain this topic. Now come to the topic shape of the shell. शेप ऑफ द सेल में वो ये बात कर रहा है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू देयर सेल। सेल की भी डिफरेंट शेप होती है। सेल का बेसिक शेप क्या होता है, राउंड, स्फेरिकल, लॉन्गेटेड, कई बार लॉन्ग होता है। इस फिगर में देखो, फिगर 8.4 में
फिगर 8.4 की ए पार्ट में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ राउंड फिगर, राउंड और स्फेरिकल सेल्स हैं। इन सेल को देखो, ये थोड़ी लॉन्ग सेल्स हैं। ए पार्ट में जो सेल हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। सेकंड पार्ट में जो हैं वो मसल सेल्स हैं। सी पार्ट में ये जो सेल है ये है नर्व सेल। और क्वेश्चन आता है नर्व सेल का डायग्राम हमेशा पूछा जाता है पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। नर्व सेल का डायग्राम पेपर में आता होता है। नर्व सेल देखो ब्रांच टाइप की होती है, स्टार्टिंग में इसके ब्रांच हैं और लास्ट में इसका एक एंडिंग है। नर्व सेल जो है, नर्व सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में एक नर्व सिस्टम बनाती है। नर्व सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में मैसेज को रिसीव करता है और उसको ब्रेन तक लेके जाता है। ब्रेन से फिर हमें आंसर मिलता है कि व्हाट टू डू। फिर ब्रेन फिर से मैसेज, ब्रेन से वापस नर्व सेल मैसेज लेकर आती है और हम उस अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी हॉट प्लेट को टच करते हैं। जैसे ही हम हॉट प्लेट को टच करते हैं, हमें लग गया वो हॉट है, हम अपना हैंड रिमूव कर लेते हैं। बट हमें कैसे पता चला? बिकॉज देयर आर नर्व सेल इन अवर बॉडी। हमारे हैंड में भी नर्व सेल प्रेजेंट हैं। तो हमारे हैंड में जो नर्व सेल प्रेजेंट हैं, जैसे ही हमने हॉट प्लेट को टच किया, एज सून एज द मैसेज विल बी रिसीव्ड इन द ब्रेन बाय द नर्व सेल। नर्व सेल क्या करेंगी, ब्रेन में मैसेज लेके जाएंगी कि दिस प्लेट इज़ हॉट, और फिर ब्रेन आंसर करेगा कि वी विल नॉट टच दिस प्लेट, सो रिमूव योर हैंड। तो मैसेज आएगा फिर से हैंड में नर्व सेल के थ्रू और हम अपना हैंड रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन भी किया था स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं जो हमने पहले अंडरलाइन किया था कि द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज thereby helping to control and coordinate working of different parts of body। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में कौन वर्क हेल्प करता है? नर्व सेल हेल्प करता है। और मैंने आपको बता दिया कि नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, ब्रेन तक लेके जाता है, ट्रांसफ़र करता है, फिर से वापस आंसर लेके बॉडी तक लेके आता है। इस तरीके से ये बॉडी की हेल्प करता है। फिर हमने बात करी कि जो सेल है उसको शेप कौन देता है। सेल को शेप देने वाली होती है दो चीज़ें। सेल को शेप देने वाली होती हैं दो चीज़ें, सुनिए कौन कौन। एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में अभी हमने बाद में पढ़ना है, टुमारो वी विल डिस्कस सेल मेम्ब्रेन। और एक होती है सेल वॉल। देयर आर टू थिंग्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब अगर हम बात करें किसी भी सेल के बारे में, फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ सेल, मान लो मैंने ये सेल बनाई। इस सेल की ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, जो कि इसको दूसरी सेल से या बाहर आउटर थिंग से इसको सेपरेट कर रही है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मेम्ब्रेन विच कवर द सेल फ्रॉम द आउटर पार्ट, विच सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटर पार्ट। वो तो होती है सेल मेम्ब्रेन। बट सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज एन अनदर लेयर विच इज प्रेजेंट द आउटर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और सॉलिड लेयर प्रेजेंट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन सेल वॉल क्या होती है? सॉलिड होती है। सेल वॉल इज एन अनदर layer which is present on the outer body of the cell membrane, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। और जो सेल वॉल होती है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट। जो सेल वॉल है दैट विल बी प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती है। इसीलिए प्लांट्स की बॉडी हार्ड और रिजिड होती है, बट एनिमल की स्किन सॉफ्ट होती है। हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, बट अगर हम यही बात करें प्लांट की स्किन सॉफ्ट होती है क्या? नहीं, बिकॉज दे हैव सेल वॉल। उस सेल वॉल की वजह से ही उनकी बॉडी रिजिड और हार्ड बनती है। बट हमारी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हमारी बॉडी की स्किन सॉफ्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दिस टॉपिक, size of the cell. Size of the cell in living organisms may be as small as
a millionth of a meter or may be as large as a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size, are not visible to unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring 170 millimeter multiplied by 130 millimeter is the egg of an ostrich. Yesterday we have discussed that जो सेल्स होती हैं उन्हें आई से नहीं देखा जा सकता. कल मैंने आपको स्मॉलेस्ट सेल और बिगेस्ट सेल लिखवाई थी. वही बात फिर से आज आ गई कि जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. जो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, वो एक बैक्टीरिया होता है. उसका साइज होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर. और जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का, जिसका साइज आपको गिवन है. तो एवरी सेल हैज़ अ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट नंबर. दैट्स इट. ओके, टुडेज टॉपिक इज डन. टुमारो वी विल स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा और देख लो. साइज ऑफ सेल का पोर्शन यहाँ भी लेफ्ट है. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal and plant. हाँ जी, एनिमल और प्लांट की बॉडी बड़ी है चाहे छोटी है, सेल का कोई मतलब नहीं है. उसमें सेल तो छोटी ही होंगी. It is not necessary that the cells in the elephant much bigger than those of a rat. The size of the cell is related to its function. साइज का, जो सेल का साइज है उसका काम किसके साथ है? फंक्शन के साथ. फंक्शन बड़ा है तो साइज बड़ा, फंक्शन छोटा है तो साइज छोटा. For example, nerve cell both in plant and rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring messages. तो साइज, शेप और नंबर हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द टुमारोज लाइव सेशन. बट फर्स्टली लिसन इट केयरफुली. अगर एक बार में नहीं क्लियर होता तो वीडियो को दोबारा सुनो, बट अच्छे से इसको माइंड में फिटअप कर लो. द टॉपिक इज़ वेरी ईजी, बट थोड़ा सा नीड है समझने की. बट आफ्टर दैट इफ़ यू हैव डाउट तो टुमारो वी विल डिस्कस इट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.